پورے ملک میں ایون ملک کے مختلف حصوں میں مختلف مسائل ہیں جو کہ عوام کو ہمیشہ پریشان کیے رکھتے ہیں، لیکن معیشت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کراچی جس کو معیشت کا ہب کہا جاتا ہے معیشت کا، اور وہاں پر مسائل جو ہے ان کا انبار لگا ہوا ہے. میں یہ کہوں گی کہ پھر یہ مسائل کا ہب بن گیا نا. یہی وجہ ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً نہ صرف ان مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ ان کے حل کے لیے بھی ہم کوششیں کرتے ہیں کہ شاید ہماری چھوٹی سی کوشش سے، ہمارے اس پلیٹ فارم سے، ہمارے اس چینل کے تھرو عوام کی مشکلات حل ہو جائیں. انہی مسائل کے حل کے لیے کوشا شہر کی نمائندہ جماعت MQM پاکستان کے وفد کی وزیر اعظم عمران خان سے ہوئی ہے ملاقات، جس میں کراچی ترقیاتی پیکیج، مردم شماری، بلدیاتی انتخابات اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. وزیر اعظم نے کیا یقین دہانی کرائی ہے اور کراچی والوں کے لیے کیا کوئی بڑی خوشخبری آنے والی ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر اور رہنما MQM امین الحق صاحب نے. امین بھائی السلام علیکم، گڈ مارننگ. سب سے پہلے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہی بتائیے گا کہ کل وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، کیا کیا بات چیت ہوئی؟ دیکھیں، وزیر اعظم سے ہماری جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو ہمارا 2-3 بڑا امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے. امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم کبھی وزیر مشیر گورنرشپ کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے، ہمارا ون لائن ایجنڈا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ کراچی ڈیولپمنٹ پیکیج، کہ کراچی کے ڈیولپمنٹ کے لیے ترقیاتی کاموں کو کیسے بہتر سے بہتر کیا جائے. سب سے پہلے تو ہم نے وزیر اعظم کو شکریہ ادا کیا کہ سینسس کے حوالے سے جو MOU بٹوین PTI اور MQM کے درمیان جو سائن ہوا تھا، اس کے اوپر فائنلی جو ہے کیبنٹ نے اپروول دے دیا اور اس پہ عمل درآمد شروع ہو رہا. وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ان سے کہا کہ کراچی کے ترقیاتی اسکیمیں جو چل رہی ہیں اس کے اوپر سیریسنس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی طرف سے ایٹ لیسٹ ہمیں سیریسنس نظر آیا ہے کہ اسی طریقے سے گرین لائن جو جتنے منصوبے چل رہے ہیں، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کم از کم کراچی کو میگا پروجیکٹ کو تیز رفتاری اور برق رفتاری کے ساتھ چلانا ہے تاکہ کراچی کے عوام جلد از جلد اس سے فوائد حاصل کر سکے. تو یس، وزیر اعظم واز ویری پازیٹیو اور انہوں نے تمام چیزوں پہ ہم سے تعاون، مکمل طور پہ MQM سے تعاون کی حقیقت جانی کرائی ہے. صحیح. امین صاحب، ویسے جب وزیر اعظم سے کراچی کی بات ہوتی ہے نا تو وہ پازیٹیو ہی نظر آتا ہے، لیکن عملاً ہمیں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا نا. اب کراچی شہر کے لیے معاشی ہب ہے، مسائل اتنے ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. مجھے بس یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نے کراچی آنا تھا، یہ باتیں ہو رہی تھیں، تو وہ خان صاحب کب کراچی تشریف لائیں گے؟ اور کراچی تشریف لانے کے بعد کیا اس دفعہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا بڑا اعلان جس پر یہ کشمکش کی صورتحال پیدا نہ ہو کہ اس میں صوبائی حکومت یہ کرے گی اور وفاقی حکومت یہ کرے گی، وہ پیکیج خاص کر کراچی کی عوام کے لیے اور وہ خاص کر خان صاحب کے ہاتھوں سے ہونے والا ہو؟ جی، آپ نے 2 سوال ایک ساتھ پوچھ لیا کہ عملاً کچھ نظر نہیں آ رہا. میں پہلے عملاً کا جواب دے دوں، پھر پرائم منسٹر کی وزٹ ٹو دا کراچی کی بات کر لیتا ہوں. دیکھیں، عملاً طور پہ اگر دیکھا جائے تو کراچی میں پہلی دفعہ وفاق کی مدد سے میرا خیال ہے بہت سارے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. مثلاً میں نے ماضی میں بھی عرض کیا ہے کہ آج سے 4 یا 5 مہینے پہلے کراچی کے عوام کو 52 فائر ٹینڈر وفاق حکومت کی طرف سے ملے. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 3 فلائی اوور بنائے گئے. اسی طرح منگو پے روڈ اور گارڈن پہ جو 1 ارب روپے کی لاگت سے روڈ بنائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ گرین لائن کا منصوبہ، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 40 بسیں آ چکی ہیں اور 40 بسیں اسی مہینے 13 یا 14 تاریخ کو اور بھی پہنچ جائیں گی. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے آخر میں یہ فرسٹ ویک آف دی نومبر پہ گرین لائن کی بسیں بھی روڈ پہ چلتی ہوئی نظر آئیں گی. اسٹیٹ آف دی آرٹ بسیں ہوں گی، کمپلیٹ ایئر کنڈیشن بس ہوگی، اس کے اندر پرسن ود ڈسیبلٹی کے بیٹھنے کے لیے گنجائش ہوگی، اور آپ اور میں اپنا موبائل فون بھی ساتھ ساتھ چارج بھی کر سکتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یس، کراچی کے عوام کو گرین لائن کا منصوبہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے KCR منصوبے حوالے سے میرا خیال ہے بڑی باتیں کی جا رہی تھی کہ KCR کا منصوبہ الحمدللہ وزیر اعظم صاحب کراچی تشریف لائے. MQM اس پہ موجود تھی اور MQM کی کوشش ہے، کاوشیں میں شامل تھی کہ KCR کے منصوبے کو بھی لانچ کر دیا گیا. اس میں کیا ہے، اس میں 207 ارب روپے کا لاگت ہوگی اور 20 ارب روپے کا انفراسٹرکچر ہوگا، یعنی لگ بھگ 225 ارب روپے جو اس کے اوپر خرچی جائے. اس کے اوپر بھی ہم نے ٹائم لائن سیٹ کیا. ہم نے ٹائم لائن کیا سیٹ کیا کہ 2 سے 2.5 سال کے اندر یا 18 مہینے سے 24 مہینے سے اس میں عمل کیا جائے گا. اور اس کا بھی ٹریک بنا دیا گیا کہ پورے کراچی میں سرکل چلے گی، یعنی اگر کراچی کینٹ سے چلے گی، کراچی سٹی پہ چلے گی، اسی طرح بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، ناظم آباد
होती हुई दोबारा हिल स्टेशन होती हुई दोबारा जो है हिल डिपो होती हुई ये दोबारा जो है डी रोड होती हुई दोबारा सिटी स्टेशन पे पहुंच जाएगी। तो एक सर्कल मुकम्मल किया जाएगा। इसके ऊपर भी काम मुकम्मल हो चुका है। K4 के मंसूबे पे महक बड़ी खुशखबरी ये है कि वापडा बहुत तेज रफ्तारी और बर्फतारी के साथ काम कर रहा है। यानी कि आपको पता है कि 2009 से कराची के वहाँ पानी के बूंद बूंद को तरस से चले आ रहे, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं था कि K4 का अपने हाथ में ले लिया। उसमें गुड न्यूज़ ये है कि 265 MGD की जो 2 ट्रैक बनानी थी, अब वो दोनों पे एक साथ काम शुरू होगा। उसका टाइमलाइन भी तय कर दिया है कि अक्टूबर 2023 सूरत में इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि यस हमें, और इसी तरह सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम का, सिंध के अवाम का, बलूचिस्तान के अवाम का, और मैं समझता फाटा के लोग भी मुतालबा करते थे कि ये जो 2017 के जो सेंसस हुआ है इसके ऊपर अदम एतबार करते चले आ रहे थे। आप सबने देखा था कि वज़ीर आला सिंध साहब ने भी इस पर शोर शराबा किया था, लेकिन अमलन इस पर किसने काम किया? MQM ने इसको फॉलो किया, MQM इसके पीछे लगी रही और फाइनली इसको कैबिनेट से अप्रूव कराया। और मैं समझता हूँ कि इसमें भी क्या किया, मैं आप सुनकर खुशी होगी, बल्कि आपके बड़े चैनल के जरिए मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहूँगा कि हमने इसमें भी टाइमलाइन तय किया है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि 14 महीने से 18 महीने के अंदर सेंसस के अमल को मुकम्मल किया जाएगा। हमने माजी में जो 1998 में जो सेंसस हुए थे उनकी कोताहियों गलतियों से सबक सीखा और हम इसे डिजिटल सेंसस के नाम पे लेके जा रहे हैं। हमारी क्या ख्वाहिश होगी कि जियो टैगिंग की जाए, जियो टैबलेट किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। अच्छा अमीन साहब, बिल्कुल आपने सारी अच्छी बातें बताई, लेकिन जितने भी मंसूबे जो भी नाक़दीन हैं वो ये कहते हैं कि ये KCR हो या फिर ग्रीन बस हो, ये एक नहीं इसके 2 से 3 मरतबा इफ्तिताह हो चुके हैं। पहली चीज़ तो ये है, इसका भी ज़रूर जवाब आप दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये कि सर ये जो बसेस आई हैं, यकीनन कराची वालों के लिए तो बड़ी खुशगवार हैरत थी। जब इनका ड्राई रन भी हो रहा था तो लोग बड़े खुश थे, लेकिन सर आपको याद होगा कि आपके ही पुराने दौरे हुकूमत में, मुशर्रफ साहब के टेन्योर में अच्छी बसेज़ आई थी, उनका लेकिन सर कब्रिस्तान बन गया। और क्यों बना वो भी आपको बहुत अच्छी तरह पता है। तीसरी बात आपने पानी की बताई, पानी K4 मंसूबा, वेरी गुड, वेल डन। मेरा सर इन तीनों सवालों का एक मेजर सवाल ये है कि कराची शहर इस ग्रोप्ड, कब्ज़ा है माफिया का इसके ऊपर। आप पानी देख लें, आप ट्रांसपोर्ट देख लें, या फिर आप कोई और दीगर चीज़ें देख लें, ये मंसूबे आ जाते हैं अमीन भाई, मंसूबे बिल्कुल आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये कहीं हवा हो जाते हैं। क्या गारंटी है सर कि इस बार ट्रांसपोर्ट माफिया, इस बार वाटर माफिया और इस बार दीगर जो भी माफिया है वो इन मंसूबों को निगल ना जाएगा 6-6 महीने बाद? फैसल, बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने, बहुत अच्छी बात की। आप कराची में रहते हैं, कराची के मसाइल को समझते हैं, डायनेमिक को समझते हैं। मैं भी कराची में पैदा हुआ, बसों पे, यूनिवर्सिटी के पॉइंट पे धक्के खाए हैं, मोटरसाइकिल पे सफ़र किया है, नीचे से ऊपर ग्रो किया, तो हमें तो कराची का चप्पा पता है, कराची के मसाइल का अंदाज़ा हमें बिल्कुल इस बात का है कि मेरा ख्याल है कि 2004-5-6 में ग्रीन बसेज आई थी और कुछ साल चली, उसके बाद वो ख़त्म हो गए। 2009 के बाद वो मेरा ख्याल है कराची के सड़कों पर नज़र नहीं आई। हमने अब क्या किया, ये जो ग्रीन लाइन बसें है इसको हमने मेक श्योर किया है कि 3 साल तक वफाकी हुकूमत इसको खुद मैनेज करेगी और उसके बाद 3 साल के बाद सूबाई हुकूमत के हैंड ओवर किया जाएगा। उसमें भी मेक श्योर कर रहे हैं कि सिर्फ सूबाई हुकूमत के हाथ में नहीं हो बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की होगी। जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ चलेगी तो जो बिजनेसमैन इसमें इन्वेस्ट करेगा वो इसको सेव भी करेगा और इसको प्रोलॉन्ग तरीके से लेके जाएगा। तो इसमें इस बात की हमने गारंटी की है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बसें सड़कों से गायब नहीं होंगी इंशाअल्लाह ताला। इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि आपने जो बात की कि लैंड माफिया, यस, मैं समझता हूँ कि कराची में जिस अंदाज से आबादी बढ़ती चली जा रही है, कराची एक बड़ा शहर है, कराची अपने सीने में तमाम लोगों को समोता है और मैं समझता हूँ कि किसी भी सूबे से जो लोग आते हैं हम उन्हें वेलकम करते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये बात की निशानदेही भी करते चले आते हैं कि अगर KPK से लोग आते हैं, पंजाब से लोग आते हैं, तो होना क्या चाहिए था कि उन सूबों की जो सूबाई हुकूमत है उनको भी कराची का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि KPT के हवाले से तो ये जो ट्रॉलर जा रहा होता है ये शहर के अंदर से जा रहा होता है, मेरा पानी इस्तेमाल करता है, मेरा रोड इस्तेमाल करता है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करता है, लेकिन बदले में हमें कुछ मिलता। तो हम बार बार इस बात की निशानदेही करते चले आ रहे हैं कि जो मुख्तलिफ जो टैक्सेस हैं उसके हवाले से बल्दिया कराची को मजबूत किया जाए, बल्दिया को मजबूत की जाए। फैसल, आप इस बात के गवाह हो कि जब तक हमारा मेयर था कोई इस बात को, बल्कि उसका उल्टा रिकॉर्ड लगाया करता था, लेकिन जब मोमेंट मेरा ख्याल है कि ये जो हमारा मेयरशिप ख़त्म होती है तो शायद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, PTI हो, PSP हो या जमात इस्लामी हो, सबका एक ही मुतालबा है कि मेयर के इख्तियारात बढ़ाए जाए।
जब आप ये देखेंगे कि फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल पावर उस मेयर के हाथ में होगा तो इस शहर की सूरत हाल बेहतर होगी। और यस, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कब्जा माफिया से भी जो लैंड माफिया है उनको रोका जाएगा, और इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था बर्बाद है उनको भी बेहतर किया जा सकता है, सीवरेज के सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली लाकर इस शहर के कर्ता धर्ता जो लोग हैं उनके हाथ मजबूत किए जाए। अच्छा अमीन भाई, एक और चीज़ कहा जाता था कि ये रसूल बलाद जो है पढ़े लिखों का शहर है, लेकिन आन की आन में अगर आज आप स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखें तो तालीम के हवाले से, और इसको कहने में हमें कोई शर्म या आर महसूस नहीं होनी चाहिए, तालीम के हवाले से दीगर सूबों में सिंध और कराची बहुत पीछे जा चुके हैं, बहुत पीछे रह चुके हैं। आज शहर कराची के बच्चे, खा वो कोई ज़ुबान भी बोलते हों, अगर वो शहर कराची और सूबा सिंध के बच्चे हैं तो वो बाइक राइडर्स बन गए हैं, वो खाना डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास तालीम नहीं है। उनका अपना भी रुझान ख़त्म हुआ, बीकॉम तक नहीं कर रहे सर, अमीन भाई बीकॉम तक नहीं कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म से जब आपकी बात होती है तो एजुकेशन के हवाले से, ऑल दो कि वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन एजुकेशन के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ मज़ीद यहाँ बनाने के हवाले से, खुद आपने कहा कि दीगर सूबों से इतना बड़ा इन्फ्लक्स है यहाँ पे, कराची यूनिवर्सिटी जाके देख लें कितने दीगर जो है वो कौमियत के और कितने दीगर सूबों के हमारे बहन भाई वहाँ पढ़ रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमें अपने जो वॉल्यूम ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है और कॉलेजेस है वो भी हमें बढ़ाना चाहिए। इस हवाले से सर कोई बात होती है? देखिए, आप यू राइट कि तालीम जो है सूबाई मामला है, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा है कि पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस सूबे सिंध के अंदर जो है वो जो जैसे कहते हैं नकल माफिया बिल्कुल उनकी तालीम को तबाह बर्बाद कर रही है। सूबाई हुकूमत ने क्या किया? सूबाई हुकूमत ने तमाम जो हमारे अच्छे अच्छे स्कूल होते थे, कॉम्प्रहेंसिव स्कूल हुआ करते थे, पहले उर्दू मीडियम जो स्कूल होते थे, वहाँ से बच्चे पढ़ करके डॉक्टर इंजीनियर बनते थे, लेकिन उन स्कूलों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। एक प्राइवेट माफिया पूरे शहर पर काबिज होती चली जा रही है। बिल्कुल हमारी इस बात पर नज़र है और हमें इस बात का अंदाज़ा है कि तालीम को बेहतर करने से कौमें तरक्की करती हैं। न सिर्फ ये बल्कि फैसल मैं साथ इजाफा भी कर दूँ कि हमारी जो MKM पाकिस्तान है, जो उसके पास मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम, हमारी ख्वाहिश है कि कराची के नौजवानों को, शहरी सिंध के नौजवानों को IT की फील्ड में भी लेकर आए जाए, और इसके लिए हमने बड़े काम कर रहे हैं। इसके ऊपर आप ये देख के आपको यकीनन खुशी होगी कि कराची IT पार्क का मनसूबा मेरा PSDP से मंजूर हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला ऐसे कंसल्टेंट हायरिंग के प्रोसेस में आ गए। 31 अरब रुपए का, मैं रिपीट करता हूँ, 31 अरब रुपए का मंसूबा इंशाअल्लाह ताला शहर फैसल पे आपको कोशिश होगी कि इसी माली साल में उसका संग बुनियाद रख दिया जाए। इसी तरीके से नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है। मेरी ख्वाहिश है कि कराची के नौजवानों को जो मुख्तलिफ तालीमी इदारों से निकलते हैं, जो उन्हें नौकरियाँ नहीं मिलती है, बेरोजगारी होती है, और आप सही कह रहे हैं कि फिर ये बच्चों को मैं देखता हूँ कि फूड पांडा पे नौकरी कर रहे होते हैं, तो इनको इस फील्ड में लाने के लिए भी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर न सिर्फ कराची में बल्कि हैदराबाद में भी कायम किया जा रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला तालीम के साथ साथ हम अपने नौजवानों को IT फील्ड में भी एक्सपर्ट करें, क्योंकि आगे का जो मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, यकीनन मैं समझता हूँ कि IT से जो रिलेटेड चीज़ होगी वही तरक्की करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल अमीन साहब, और सफ़े अव्वल में खड़े होने के लिए ये हमारे लिए ज़रूरी भी है कि वो अपनी यंग जनरेशन को इस चीज़ से हम आंगी दें कि आपने पढ़ना है और अब ये पढ़ना है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना सब्जेक्ट्स की, तो अब हम वो पुराने वाले ट्रैक्स पे नहीं चल सकते। लास्ट में कमेंट दे दें क्या इस मुलाकात में, इस गुफ्तगू में आप की सियासत के हवाले से भी यकीनन कोई ना कोई बात हुई होगी, क्योंकि पिछले दिनों बड़ी बातकश थी कि MKM से बड़ी नाला नज़र आ रही है हमारी गवर्नमेंट, तो प्लीज़ ज़रा इस पर भी एक कमेंट कीजिएगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि कुछ बातें जो MKM के डेलीगेशन और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हुई है, जिसमें असद उमर भी थे, मेरा ख्याल है कुछ बातें सीक्रेट रहनी चाहिए। हमने अपनी शिकायत भी की है, आगे के फरमाइश भी की है, और कोशिश की है कि डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से हमने उनसे क्या कहा है कि हम किसी माजी की तरह जो एक इल्ज़ाम लगता था MKM पे कि ब्लैक मेलिंग करती है, हम किसी ब्लैक मेलिंग की पोजीशन में नहीं करेंगे, बल्कि हम हमेशा जब भी बात करेंगे तरक्याती पैकेज की बात करेंगे, अर्बन सिंध की बेहतरी के लिए बात करेंगे, अपने वोटर अपने सपोर्टर की बेहतरी के लिए बात करेंगे, जिससे अगर कराची तरक्की करता है तो पूरा मुल्क तरक्की करता है। तो हमारे मेरा ख्याल इस बात से बिल्कुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जो उनके साथ असद उमर साहब थे एग्री किया है, MKM के पॉजिटिव पोस्टर को सराहा भी है। सही, ठीक। अमीनुल हक साहब बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, और ये तमाम पहलू जो कि कल वज़ीर आज़म के सामने रखे गए होंगे, जिनमें गुफ्तगू की होगी, वो सब आप फैसल कवर भी हो चुके होंगे।